سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آرمی چیف کے حکم پر مزار قائد کی بے حرمتی اور آئی جے سندھ کے مبینہ اغوا کی انکوائری مکمل ہو گئی۔ رینجرز اور آئی ایس آئی کے متعلقہ افسران کو عہدوں سے ہٹا کر جی ایچ کیو رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی واقعے پر آرمی چیف کی انکوائری کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جمہوری طریقہ یہی ہے کہ غلطی ہو تو تحقیقات کی جائیں اور ایکشن لیا جائے۔ نگر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ خوشخبری ملی ہے کہ انکوائری میں ذمہ داروں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کے فیصلے سے اداروں کی عزت میں اضافہ ہوا اور وفاقی حکومت نے سندھ پولیس کے افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ کراچی واقعے پر پاک فوج نے تو اپنے افسران کے خلاف ایکشن لے لیا، جن افسروں نے پولیس میں بغاوت کی ان کے خلاف بھی مثال قائم ہونی چاہیے۔ شبلی فراز نے کہا کہ سندھ حکومت کی انکوائری رپورٹ کو دیکھیں گے، سویلین سائٹ پر بھی جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے۔ میں یہ بھی پاکستان آرم فورسز کا جو اپنا سیلف ڈسپلن اور سیلف خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ حرکت میں آیا۔ اپنے جو 2 آفیسرز تھے ان کو جو ہے تو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا، حالانکہ اس کی تفصیلات دی بھی گئی ہیں کہ جو آفیسرز تھے انہوں نے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب اگر تو وقت پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی، کیونکہ کئی لوگ مشتعل تھے، ہم جیسے لوگ بھی اس پہ، ہم کافی پاکستان کے عوام اس پہ کافی رنجیدہ تھے کہ جو ہوا قائد اعظم کے مزار پہ، تو اس کی اگر بر وقت اگر پولیس ایف آئی اے ایس ایچ او ہی اس کی ایف آئی آر درج کر دیتا تو یہ واقعات اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے۔ پاکستان ریلویز نے کراچی میں سرکولر ریلوے کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ کے سی آر کی سہولت سے شہری 50 روپے میں 60 کلومیٹر کا فاصلہ آرام سے طے کر سکیں گے۔ کراچی سرکولر ریلوے پپری سے لانڈھی اور لانڈھی سے اورنگی اسٹیشن تک چلائی جائے گی۔ کراچی سرکولر ریلوے کے لیے دی جانے والی تاریخ پر تاریخ کا سلسلہ ختم ہوا۔ محکمہ ریلوے نے سرکولر ریلوے کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کر دیا۔ 16 نومبر سے کراچی میں سرکولر ریلوے کی سروس صرف پپری سے اورنگی ٹاؤن تک کے لیے ہوگی۔ شہری 60 کلومیٹر کا یہ فاصلہ 50 روپے میں طے کر سکیں گے۔ پپری سے اورنگی ٹاؤن ٹریک کے لیے 4 ٹرینیں مختص کی گئی ہیں۔ یہ ٹرینیں 3 گھنٹے کے وقفے سے اپ اور ڈاؤن ٹریک پر چلیں گی۔ پہلی ٹرین صبح 7 بجے اورنگی اور پپری اسٹیشن سے روانہ ہوگی، جس کے بعد 10 بجے، پھر دوپہر 1 بجے اور سپہر 4 بجے ٹرینیں روانہ ہوں گی۔ کراچی کے شہریوں نے سرکولر ریلوے کو خوشائند قرار دے دیا۔ 16 نومبر پہ چل رہی ہے، اگر چلے اچھا ہے، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، آنے جانے میں بہت آسانی ہوگی، فائدہ ہوگا عوام کو بھی اور کراچی والوں کو بھی سب سے زیادہ اچھا۔ اس سے اچھا اور کیا فیصلہ ہوگا؟ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل یہی کرتے ہیں کہ خدا را جلد سے جلد اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں۔ پاکستان ریلویز نے کراچی سرکولر ریلوے کے آغاز کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سرکولر ریلوے کو مرحلہ وار چلایا جائے گا۔ کراچی کے علاقے محمود آباد نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن آج شروع ہوگا۔ نالے پر آباد غیر قانونی گھر گرائے جائیں گے۔ آپریشن میں 50 خواتین سمیت 200 اہلکار، رینجرز اور اینٹی انکروچمنٹ فورس کے اہلکار بھی شامل ہوں گے۔ واٹر کینن اور اے پی سی وینز کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے محمود آباد نالے پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن آج شروع کیا جائے گا۔ نالے پر آباد غیر قانونی گھر گرائے جائیں گے۔ اس آپریشن میں 50 خواتین سمیت 200 اہلکار، رینجرز اور اینٹی انکروچمنٹ فورس کے اہلکار بھی شامل ہوں گے، جبکہ واٹر کینن اور اے پی سی وینز کو بھی اس موقع پر طلب کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے آرمی چیف سے مدد کی اپیل کر دی۔ کہتے ہیں لگتا ہے عمران خان کو آج تک یہ یقین ہی نہیں کہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم سے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا مطالبہ بھی کر دیا۔ باجوہ صاحب، ہماری امیدیں حکمرانوں سے ختم ہو گئی تھی، ہماری امیدیں اپوزیشن سیاستدانوں سے ختم ہو گئی تھی، سندھ حکومت سے، وفاقی حکومت سے، سٹی حکومت سے ختم ہو گئی تھی۔ آپ آئے تھے، آپ نے توجہ لی تھی، پاک کراچی والوں کی امیدیں جاگی تھیں۔ پیپلز پارٹی مسائل کے حل کے طور پر اپنے آپ کو پورے پاکستان میں پیش کر رہی ہے، سندھ میں پیش کر رہی ہے۔ 8,342 ارب روپے این ایف سی ایوارڈ اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں ان کے پاس آئے 10 سالوں میں اس پیپلز پارٹی کے بعد، جبکہ سندھ میں کراچی سے لے کر کشمیر تک جو آج تباہی بربادی ہے وہ کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے، صرف اور صرف پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے۔
वफाकी हुकूमत ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वफाकी काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपये फ़ी मन रखने का फैसला कर लिया। नदीम अफजल चंद ने इमदादी कीमत 1800 रुपये करने का मुतालबा किया। 4 वज़रा के अलावा तमाम वज़रा ने इमदादी कीमत बढ़ाने की मुखालफत कर दी। वफाकी हुकूमत ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए फी मन ही रहेगी। काबीना ने ईसीसी के फैसले की तौसीक कर दी। इजलास में नदीम अफजल चंद ने गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया और कहा कीमत न बढ़ाई तो गंदम के बहरान का खदशा है। शबीर कुरैशी, फहर इमाम और इशरत हुसैन ने नदीम अफजल चंद के मुतालबे की हिमायत की। 4 वज़रा के अलावा तमाम वज़रा ने गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुल्क में मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क में गंदम और आटे का कोई बहरान ना हो। महंगाई में कमी के लिए इकदामात मजीद तेज किए जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबरी फराज का कहना था कि उम्मीद है इससे किसान और अवाम दोनों ही खुश होंगे। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा लाएअमल बनाया जाए जिससे सब्सिडी का फायदा सिर्फ हकदारों तक पहुँचे। किसान साइड पे जो इंसेंटिव दिया गया है वो 100 रुपए का, जो कि इनपुट कॉस्ट उनकी कम होगी, तो इसलिए ये एक ऐसी प्राइस है, एक ऐसी कीमत है जिससे कि किसान भी खुश होंगे और अवाम भी खुश होंगे। काबीना ने इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ कौमी बयानिए पर अमल दरामद से मुतल्लिक कौमी कमीशन बनाने की मंजूरी दी। काबीना ने सऊदी अरब की जानिब से डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आगाज की तजवीज की मंजूरी दी। इजलास में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने बुध को कोरोना की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत 1650 रखे जाने के फैसले को पंजाब के किसानों ने मुस्तरद कर दिया। किसानों का कहना है कि जितनी कीमत हुकूमत ने रखी है इससे तो इस गंदम पर होने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हो सकते, लिहाजा गंदम की कीमत फ़ी मन 2000 तक होनी चाहिए। हुकूमत ने जो गंदम का रेट 1650 रुपये मुख्तस किया है तो उसमें तो हमारे खर्चे भी पूरे नहीं होते। 5-6 महीने लगा के हम खाली गंदम बीजते हैं, उसकी कटाई करते हैं, तो फिर हम मंडी में फेंकते हैं, उसमें तो हमारे अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। तो हमें चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें और गंदम का रेट थोड़ा सा ज़्यादा करें। ये जो सूबाई हुकूमत ने ये जो 1650 गंदम की कीमत रखी है, इसे हम मुस्तरद करते हैं। इसकी कम अज़ कम 2000 होनी चाहिए कीमत, क्योंकि अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि हम इसे सर्वाइव नहीं कर सकते। गंदम की प्राइस इन्होंने 1650 रुपये रखी है वफाकी हुकूमत ने, ये बहुत कम है। इसको कम अज़ कम 2000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। इस वजह से फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और लेबर की भी बहुत कास्ट आ रही है। देखें जी, जो हुकूमत ने गंदम का रेट निकाला है कम से कम 2000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि किसानों को तो कोई फ़ायदा हो ना इसमें। तो क्यों इसमें जो 1600 रुपये, इसमें किसानों को तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो वफाकी काबीना ने 1650 रुपये फ़ी मन गंदम का रेट मुकर्रर किया, हम उसे मुस्तरद करते हैं। जो हमारे प्यारे क़याद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 2000 मन की तजवीज़ पेश की है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमरीकी सदर बनने के लिए अब भी पुरुम्मीद हैं। कहते हैं हम बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं, नताइज अगले हफ्ते आना शुरू होंगे, अमेरिका को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे और हम जीतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब भी पुरुम्मीद हैं कि वो दोबारा से अमरीकी सदर मुंतखब हो जाएंगे। कहते हैं कि हम बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नताइज अगले हफ्ते आना शुरू होंगे, अमरीका को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे और हम जीतेंगे। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के नताइज के बाद कानूनी जंग छिड़ने का खतरा पैदा हो गया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात के लिए वफाकी प्रोसिक्यूटर्स को इख्तियार दे दिया, लेकिन विलियम बर की तरफ से वफाकी प्रोसिक्यूटर्स को लिखे गए मेमो में बेकायदगियों के शवाहिद का तज़किरा नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल के इस इक़दाम पर महकमा इंसाफ में इंतखाबी जराइम के शोबे के निगरान रिचर्ड पेल्गर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। इमरान याकूब ढिल्लो हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान याकूब, बताएगा अभी क्या मामलात इस सिलसिले में सामने आ रहे हैं? जी, अब एक तरफ तो जो नौमुंतखब हैं बाइडन, वो तैयारी कर रहे हैं अपना इक़्तिदार संभालने की। वो उन्होंने कल एक अपने टास्क फोर्स भी बनाई है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो मुसलसल इस बात से मुस्तर हैं कि वो उनके वोट चुराए जा रहे हैं, उन्हें शिकस्त नहीं हुई है, वो अभी मजीद लड़ेंगे। और मुसलसल ट्वीट की एक सिलसिला चल रहा है उनकी तरफ से। ताज़ा तरीन जो उन्होंने
ट्वीट की थी, वो उन्होंने कहा था कि इंतखाबी धांधलियों के मामला जो हैं वो अटॉर्नी जनरल विलियम बर देखेंगे। तो विलियम बर ने आज एक मेमो जारी किया है जिसमें ये जो इख्तियार दिया गया है वो प्रोसिक्यूटर्स को कि वो जो किसी भी स्टेट में इंतखाबी धांधलियों से मतलब तहकीकात कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या सोच रहे हैं। और यहाँ एक इख्तिलाफ की कैफियत है अमेरिका में, और लोग ये अब सोच रहे हैं कि शायद जो अमेरिका की 244 साल तारीख है कुछ ऐसा हो जो कभी नहीं हुआ पहले, क्योंकि अमरीकी जमहूरियत की यही खूबी समझी जाती है कि यहाँ इंतकाल इक़्तिदार जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से होता है। तो लेकिन हालात जिस तरफ जा रहे हैं इससे अब शुको शुबहात पैदा हो रहे हैं कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो कि अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है और वो मुसलसल इस सिलसिले में इक़दाम कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कानूनी जंग की तैयारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ रियासतों में उनकी तरफ से जो है केस दायर किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की वो तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो हो सकता है कि हमें ऐसी खबरें भी सुनने को मिली हैं कि अवामी सतह पर प्रेशर बढ़ाने के लिए हो सकता है कि रिपब्लिकन बड़े शहरों में रैलियां निकालें। तो इस तरह की अभी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर 20 जनवरी को इंतकाल इक़्तिदार होना है तो उस वक्त तक ऊँट किसी करवट नहीं बैठता या अदालत सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं देती, तो यकीनन एक तनाज़ा होगा। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को जबरदस्ती व्हाइट हाउस से निकालना पड़ेगा, ये एक सवाल है जिसका अभी तक कोई वाज़ेह और ठोस जवाब हमें ठीक है। और गैर यकीनी की सूरत हाल दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब अपडेट करने के लिए। अदाकारा मीरा खुद पर लगे करप्शन के इल्ज़ामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से उलझ पड़ी। कहती हैं कि वो असल ज़िंदगी की हीरोइन हैं, इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, उनके दुबई में विलास हैं। कहती हैं कि उन पर कोई भी इल्ज़ाम सच साबित हो जाए तो वो फांसी चढ़ जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक स्टेटमेंट देने के ऐलान के बावजूद बैंक स्टेटमेंट देने से इनकार करते हुए अपने वालिद को अकेला छोड़कर चली गई। मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई बरसों से हीरोइन परफॉर्म कर रही हूँ। हीरोइंस को फिल्म में भी इल्ज़ामात के पत्थरों से संसार किया जाता है और इन पर झूठी तोहमतें लगाकर इन्हें बदनाम और रुस्वा करना फिल्म के विलन का शैतानी शेवा दिखाया जाता है फिल्म में। कि मैं सरे आम अगर कोई साबित कर देगा ना कि मैंने पैसे वसूल किए हैं या मैंने फंड रेजिंग की है या मैंने पैसे लिए, मैं सरे आम अपने आप को फांसी दे दूंगी। मैं सरे आम अपने आप को फांसी दे दूंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं, आज मैं रियल लाइफ की भी हीरोइन हूं। जद्दा में यौम इकबाल के सिलसिले में पाकिस्तान कॉन्सुलेट में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में यौम इकबाल के हवाले से सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने शार मशरिक़ के फ़लसफ़ा खुदी की अहमियत को उजागर किया, जबकि शोरा ने दिन की मुनासबत से अल्लामा इकबाल की अज़मत पर अशार पेश किए। तकरीब से खिताब में कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद ने अल्लामा इकबाल को बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन के नज़रिए पर खिराज अक़ीदत पेश किया। उनका कहना था कि फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए अल्लामा इकबाल के अफ़कार का मज़ीद गहराई से मुतालिया ज़रूरी है। तकरीब में पाकिस्तानी स्कूल के बच्चों ने अपनी तकारीर में अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन पेश किया। खैबर मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर के स्टूडेंट डॉक्टर अदनान हलीम कोरोना से लड़ते हुए शहीद हो गए। डॉक्टर अदनान हलीम खैबर टीचिंग अस्पताल के मेडिकल ICU में वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर अदनान हलीम का ताल्लुक ज़िला सवात से था। खैबर मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर के स्टूडेंट डॉक्टर अदनान हलीम कोरोना वायरस से लड़ते हुए शहीद हो गए। डॉक्टर अदनान हलीम खैबर टीचिंग अस्पताल के मेडिकल ICU में वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर अदनान हलीम का ताल्लुक ज़िला सवात से था। कराची में WWF और ऑक्सफेम के इश्तराक से साहली इलाकों में बरसरे रोज़गार ख़वातीन के हवाले से सेमिनार मुनक़िद किया गया। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए।
जामे कराची के ICCBS और हयातियाती साइंसेज में WWF और ऑक्सफॉर्म के इश्तराक से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार का मकसद साहिली इलाकों में बरसरे रोजगार की खातिर काम करने वाली खवातीन को खुद मुख्तार बनाना था। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीनों में घर मुश्किल से चलता है। फिर सीजन चालू थी है तो अभी तो दरिया में मच्छी बहुत कम है ना, बस टाइम पास हो जाता है। इस मौके पर WWF के रीजनल डायरेक्टर का कहना था कि साहिली पट्टी पर काम करने वाली खवातीन का अपने खानदान की माशी ज़रूरियात के हवाले से अहम किरदार है। जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें, और उसके अलावा जो है एकेडेमिया के और रिसर्च के जो लोग हैं उन सबको इकट्ठा एक छत के नीचे जमा किया और हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ख़वातीन की वनरेबिलिटीज़ को कम किया जा सकता है। सेमिनार में असातिज़ा और तलबा व तालबात के साथ साथ देही इलाकों में रहने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन शौकत अली के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। पंजाब के बाद वफाकी काबीना में भी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। वज़रा को कारकर्दगी बेहतर बनाने की 6 माह की डेडलाइन ख़त्म हो गई। कौन कौन से वज़ीर मुमकिना तौर पर तब्दील हो सकते हैं, वज़ीर आज़म वज़रा की खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट का जायज़ा ले रहे हैं। इसी बारे में अवैस कयानी की रिपोर्ट देखिए। 6 माह का वक्त गुजर गया। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से दी जाने वाली डेडलाइन खत्म हो गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का अपनी टीम में तब्दीली का फैसला कर लिया। जल्द ही वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां मतवक्के हैं। इत्तलात, दाखिला, तवानाई समेत इकनॉमिक टीम में भी तब्दीलियां मतवक्के हैं। वज़ीर आज़म का वज़रा से इंफरादी मुलाकातों और इंटरव्यूज का सिलसिला भी जारी है। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म वज़रा की खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ मतवक्के तब्दीलियों से कबल वफाकी वज़रा का एक दूसरे से वजारतों की तब्दीलियों पर जयमगोइयों और तवील नशिस्तों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कौन सा वज़ीर कितना अमीर है, कौन सा रुकनी कौमी असम्बली कितना गरीब है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के साल 2019-20 के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान 8 करोड़ से ज़्यादा रुपए मालियत के असासों के मालिक निकले। एहसानुल हक बाजवा 5 अरब 46 करोड़ 43 लाख असासों के साथ अमीर तरीन रुकने असम्बली हैं। कोयटा से मौलवी असमतुल्लाह 11 लाख रुपए असासों के मालिक के साथ गरीब रुकने असम्बली की फहरिस्त में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के साल 2019-20 के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास 1 करोड़ 99 लाख से जायद कैश भी मौजूद है। उनके पास 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फिरोजवाला में 80 कनाल जमीन के एवज 7 करोड़ से जायद का एडवांस भी ले रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर 8 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं और 1 करोड़ 26 लाख रुपए से जायद रकम के मकरूज हैं। वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान 1 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक निकले। उन्होंने 2 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। वज़ीर दिफा परवेज खटक 15 करोड़ से जायद मालियत के असासे रखते हैं, जबकि अपनी सास के 2.5 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान 3 अरब 20 करोड़ से जायद मालियत के असासों के मालिक निकले। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 67 करोड़ 68 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। नवाब शाह में करोड़ों की जायदाद भी है। 1 करोड़ 67 लाख का असलहा मौजूद और 79 लाख का कारोबार भी है। घोड़ों और पालतू जानवरों की कीमत 99 लाख जाहिर की गई है। बिलावल भुट्टो के पास 1 अरब 58 करोड़ 52 लाख रुपए से जायद के असासे हैं। बिलावल भुट्टो ने 12 लाख 51 हजार के सेविंग सर्टिफिकेट्स भी बताए हैं और 8 बैंक अकाउंट्स हैं। दुबई की मुख्तलिफ कंपनीज में अपने शेयर्स जाहिर किए हैं। ख्वाजा साद रफीक के 12 करोड़, अयाज सादिक 6 करोड़ से जायद, शाहिद खाकान अब्बासी 6 करोड़, जबकि अख्तर मेंगल के असासों की मालियत लाखों में है। राजा परवेज अशरफ ने 2 करोड़ से जायद, मरियम औरंगजेब ने 3 करोड़ से जायद असासे जाहिर किए। वफाकी वजीर फैसल वावडा 63 करोड़ रुपए मालियत के असासों के मालिक हैं। फैसल वावडा के पास 51 करोड़ रुपए के गैर मुल्की असासे हैं। 40 तोला सोना और 1 करोड़ से जायद मालियत की गाड़ी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 24 करोड़, शफकत महमूद 15 करोड़, हमाद अजहर 36 करोड़, उनकी अहलिया 28 करोड़ के असासों के मालिक हैं। असद उमर के 66 करोड़, मुराद सईद के 31 लाख रुपए के असासे हैं। मुराद सईद ने गाड़ी और 15 तोले सोने की कीमत जाहिर नहीं की। गुलाम सरवर खान 5 करोड़, जबकि फवाद चौधरी 11 करोड़ 16 रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24।